हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर से क्वेश्चन फॉर नीट चौका नंबर 6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी u, इट passes through a certain point above the ground after t1 second. The time after this happening when the body passes the same point during down journey is u by z minus t1 square, u2 u by z minus t1, 3 u square by z minus t1, 3 u square by g square minus t1. Question number 2. From the top of a tower, a stone is thrown up and reaches the ground in time t1. A second stone is thrown down with the same speed reaches the ground in time t2. A third stone is released from the rest and reaches the ground in time t3. Then t3 is equal to half t1 plus t2. t3 is root t1 t2. 1 upon t3 is equal to 1 upon t2 minus 1 upon t1. t3 का स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर. Question number 3. A boy throws balls vertically up at regular interval of 1 second such that at the most 3 balls are in air. What is the maximum height up to which a ball can go? G is 10 meter per second square. Option है 20 meter, 11.25 meter, 42 meter, 16.25 meter. Question number 4. A car accelerates from rest at constant rate alpha for some time, after which it deceleration at a constant rate beta to come to rest. If total time elapsed is t, the distance covered by the car is alpha beta t by alpha plus beta, alpha beta t 2 alpha plus beta, alpha beta t square by 2 alpha plus beta, alpha beta t square by alpha plus beta. Now solution. Question number 1. A body is projected with velocity u. It passes through a certain point above the ground after t1 second. The time after this happening when body passes the same point during down journey is u by z minus t1 square, 2u by z minus t1, 3u square by z minus t1, 3u square by g square minus t1. सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ए पॉइंट से बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में u स्पीड से थ्रो किया गया. हाईएस्ट पॉइंट इज बी और आफ्टर t1 सेकेंड, अप जर्नी में आफ्टर t1 सेकेंड एक सी पॉइंट है, सी पॉइंट एट t1 सेकेंड. टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट. सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करें. हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज 0. तो v इज इक्वल टू u प्लस u
u इज अपसाइड पॉजिटिव लिया है और g इज डाउन साइड नेगेटिव माइनस जी टी, v ज़ीरो u माइनस जी टी और जी टी इज इक्वल टू u, t इज इक्वल टू u बाई जी। थ्रोइंग के टाइम से ये u बाई जी सेकेंड बाद b पॉइंट पर होगा, u बाई जी। टाइम टेकन to reach from C to B, u माइनस जी टोटल टाइम है और C पर टाइम t1 सेकेंड लिया, दिस इज u बाई जी माइनस t1। अब इसकी डाउनवर्ड जर्नी होगी सपोज दिस इज अपोजिट साइड में C पॉइंट पर आती है, तो जितना टाइम ये ऊपर जाने में लेती है कोई भी ऑब्जेक्ट, उतना ही वो डाउन आने में लेगा। तो टाइम इलैप्स्ड, टोटल टाइम elapsed from C upward journey and C downward journey। ये होगा टाइम टेकन फ्रॉम C to B प्लस टाइम टेकन फ्रॉम B to C। बोथ टाइम इक्वल होंगे तो u बाई जी माइनस t1 प्लस u बाई जी माइनस t1, तो टोटल टाइम होगा 2u बाई जी माइनस t1। B is correct option। Question number 2, from a top of a tower a stone is thrown up and reaches the ground in time t1, a second stone is thrown down with the same speed, reaches the ground in time t2, a third stone is released from the rest and reaches the ground in time t3, then t3 is equal to half t1 plus t2, t3 is root t1 t2, 1 upon t3 is equal to 1 upon t2 minus 1 upon t1, t3 का स्क्वायर is equal to t1 स्क्वायर minus t2 स्क्वायर। एक टावर है, सपोज हाइट ऑफ टावर इज h। फर्स्ट स्टोन अगर हम उसको P मान लें, सेकंड स्टोन इज Q एंड थर्ड इज R। P को अप साइड में थ्रो किया जाता है, P इज थ्रोन अपर साइड, अपर डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड सपोज u,
अगर हम फॉर P, दिस इज P, अपर डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लें और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लें, तो फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जो S डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, जब यहाँ से टावर के टॉप से बॉटम तक आएगा तो दिस इज H, U is positive ut, u time is t1 and g is lower side negative 1 upon g t1 का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन, देन 4q, q को हमने v स्पीड से थ्रो किया है, u स्पीड से डाउनवर्ड थ्रो किया है। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लें और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लें, क्योंकि यहाँ सभी डाउनवर्ड में हैं u, g और h, इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इस फॉर्मूला में पुट कर दें तो S इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, H इज इक्वल टू U भी डाउनवर्ड यू टी टू एंड G भी डाउनवर्ड T2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब R को हमने ड्रॉप कर दिया है, यहाँ से ड्रॉप किया, ये U इज इक्वल टू 0, दिस इज Q एंड ये R। फॉर R डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, क्योंकि H भी पॉजिटिव, H भी डाउनवर्ड और G भी डाउनवर्ड है। इक्वेशन है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इस फॉर्मूला, तो H इज इक्वल टू यू इज 0 इंटू T3 प्लस हाफ जी T3 का स्क्वायर, तो H इज इक्वल टू हाफ जी T3 का स्क्वायर। इस तरह से तीन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 माइनस H यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन का स्क्वायर, सेकंड यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर, और थर्ड है H इज इक्वल टू हाफ जी टी थ्री का स्क्वायर। दिस इज 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों इक्वेशन से मैं H और U को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन नंबर थर्ड से पुट वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन 1, तो 1 हो जाता है माइनस हाफ जी टी थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी वन माइनस हाफ जी टी टू का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली हम H की वैल्यू सेकंड में पुट कर दें, तो सेकंड हो जाता है हमारा प्लस हाफ जी टी थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। अब H एलिमिनेट हो गया, अब हमें U को एलिमिनेट करना है। U को एलिमिनेट करने के लिए इनको इक्वल कर दें, अगर इसको हम T2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई T2,
तो माइनस जी T3 का स्क्वायर T2 इज इक्वल टू यू T1 T2 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर T2। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई, जो फिफ्थ को हम मल्टीप्लाई T1 से कर दें तो हाफ जी T3 का स्क्वायर T1 यू T1 T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर T1। क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 से हमने 6 से हमने 7 को माइनस कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो माइनस करेंगे तो इधर आएगा 1/2 जी T3 का स्क्वायर T2 माइनस 1/2 जी T3 का स्क्वायर T1 और ये क्रॉस हो जाएगा, ये आएगा माइनस 1/2 जी T1 स्क्वायर T2 माइनस 1/g T2 स्क्वायर T1। इन दोनों इक्वेशंस में से माइनस हाफ जी T3 का स्क्वायर कॉमन T2 प्लस T1 और इनमें से 1/2 जी T1 T2 T1 प्लस T2। हाफ माइनस हाफ क्रॉस हो जाएगा, T1 प्लस T2 क्रॉस हो जाएगा, इधर बचेगा T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2 और T3 इज इक्वल टू T1 T2 का रूट। दिस B is correct option. Question number 3. A boy throws balls vertically up at a regular interval of 1 second such that at most 3 balls are in air. What is the maximum height up to which a ball can go? G is 10 meter per second square, 20 meter, 11.25, 42, 16.25 meter. दिस ग्राउंड, यहाँ से बॉल थ्रो की जा रही और वापस आ रही। एट मोस्ट मैक्सिमम जो है 3 बॉल्स, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, 3 बॉल्स जो है एयर में रह सकती हैं। अगर हम 1 2 3 4 बॉल्स को नंबर दें 4 5 एंड सो ऑन, तो मैक्सिमम at most 3 balls are in air for maximum height and 3 balls, जब fourth ball is just to throw and first ball is just to touch the ground. This is first ball, second ball and third ball. Fourth ball is to be thrown, just to be thrown, जो रेडी है बॉय फेंकने के लिए जस्ट, और ये जस्ट टच टू टच। तो टोटल टाइम 1 और 2 के बीच में 1 सेकेंड, 2 और 3 के बीच में 1 सेकेंड एंड 3 और 4 के बीच में 1 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ ball 1 in the air, that is 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद फर्स्ट बॉल ग्राउंड पर आ जाती है। इट मीन्स
to go up to highest point after through time taken by ball 1 is 3/2 1.5 सेकेंड। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए उसको 1.5 सेकेंड का टाइम लगता है। अब ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। हाईएस्ट पॉइंट पर जो v होगा दैट इज 0। तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। 0 u माइनस 10 इंटू 1.5 u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। जो थ्रो किया गया है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs और 2gh। 0 का स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10h। 225 माइनस 20h is 0। 20h is equal to 225 और h is equal to 225 by 20 11.25 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी दैट इज 11.5 मीटर 11.25 मीटर। B is correct option. Question number 4. A car accelerates from rest at constant rate alpha for some time, after which it deceleration at a constant rate beta to come to rest. If total time lapsed is t, the distance covered by car is alpha beta t, alpha plus beta, alpha beta t by alpha 2 alpha plus beta, alpha beta t square upon 2 alpha plus beta, alpha beta t square upon alpha plus beta। अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें t और इस साइड में v, इनिशियली कांस्टेंट एक्सेलरेशन सपोज यहाँ से O और A ग्राफ, इसका जो स्लोप होगा दैट इज अल्फा। अब उसके नेक्स्ट ये रिटार्ड होता है और वेलोसिटी 0 हो जाती है। जो स्लोप होगा ए बी ग्राफ का दैट इज बीटा। टोटल टाइम इज t सेकेंड। दिस इज v मैक्सिमम, v max। सपोज v max is after t1 t time, t1 time। तो alpha is equal to slope of OA v max by t1
or T1 is equal to V max by alpha. इक्वेशन नंबर 1। अब बीटा होगा स्लोप ऑफ ए बी कर्व वी मैक्स, जो टाइम ये t माइनस T1 और t माइनस T1 इज इक्वल टू V मैक्स बाई बीटा। इक्वेशन नंबर 2, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। T1 से T1 क्रॉस हो जाएगा, कैपिटल T इज V मैक्स बाई अल्फा प्लस V मैक्स बाई बीटा। V मैक्स कॉमन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। V मैक्स अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा, और V मैक्स की वैल्यू आ जाती है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। दिस इज V मैक्स, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा टी। Distance covered is area of this graph. Distance covered area of triangle OAB, ये होगा हाफ बेस इंटू हाइट V मैक्स 1/2 T इंटू अल्फा बीटा T बाई अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा T स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा T स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। C is correct option.